सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद शोभना। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 विच इज फाइबर टू फैब्रिक। सो लेट्स स्टार्ट. First, Paheli and Bojo won the first prize in the science quiz competition held at their school. They were excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some of clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Bailey and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. After their visit to the clothes shop, Bailey and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that sorry, they found that bed sheets, blankets, curtain, tablecloth, towel, and duster were made from different kind of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify this fabric as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? ये आपको एक्टिविटी है, आप कर सकते हो. हम आगे बढ़ते हैं. Here, fiber. Okay, here. You might have observed something similar when you try a thread or needle. Many a time, the end of the thread is separated into few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made of thin silver strands called fabric. Fabrics are made of yarns and yarns are further made up of fabric. Where do these fabrics come from? The fibers. देखो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया उसमें कुछ नहीं था. उसमें बस एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी बताई थी. ये एक्टिविटी दे रखी है, ये वैरायटी दे रखी है. जो रियल पढ़ाई होगी स्टार्ट वो होगी यहाँ से, क्योंकि मैं आपके लिए ये चैप्टर पहले ही रीड कर लेता हूँ तो मेरे को पता है कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होगी कहाँ से नहीं होगी. यहाँ तक आपको कुछ नहीं था. ओके, चलिए अब पढ़ते हैं. ये fabrics are made up of yarns. ये है. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. These are called natural fiber. You have to remember the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. You know, and जो means cotton हो गया, मीन्स कॉटन हो गया, जूट हो गया और आपका सिल्क हो गया एंड वूल हो गया. ये ऑल क्या है? नेचुरल फाइबर. ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट्स एंड एनिमल से. जो फाइबर प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन होता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर. ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो फिर क्या आ सकता है? नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम. नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, तो तभी आपको याद रखना है. ओके ओके, चलिए. Cotton and jute are example of fiber obtained from plant. कॉटन और जूट कहाँ से obtained होते हैं? प्लांट से. फाइन. कॉटन का भी प्लांट होता है और जूट का भी एक प्लांट होता है. Wool and silk are obtained from animal. Wool जो भेड़ होती है उनसे मिलता है. sheep and silk silkworm से. Wool is obtained from the flesh of sheep and or goat. It is also obtained from the hair of rabbits. ये नहीं पता होगा कि जो रैबिट के हेयर होते हैं उनसे भी हमें सिल्क मिलता है. रैबिट के हेयर से भी, याक एंड कैमल के भी. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म. कोकून जो होता है सिल्कवर्म का, उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है. और वूल तो हमें इन सब से भी मिल जाता है. For thousands of years, natural fiber were only once available for making fabrics.
ओके, ये पहले जब हजारों साल पहले तो नेचुरल फाइबर ही थे बट जो मेकिंग फैब्रिक्स बनाने में यूज होते थे, बट लास्ट 100 ईयर है वो, मतलब 100 साल पहले, सॉरी, बट 100 साल पहले ऐसे भी फाइबर आए हैं जो केमिकल से बनते हैं. ओके, लेट्स सी those fiber. Next, are made from chemicals which are not obtained from plant. Here, यहाँ से पढ़िए. In the last 100 years ago, fiber are also from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fiber. See, अब सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर पे ये कहाँ से आते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे. सिंथेटिक फाइबर से आपके क्वेश्चन आएंगे कि सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल और प्लांट्स एंड एनिमल, ये आ सकता है. नेचुरल फाइबर पे आ सकता है कि नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, ये तो हो गया फाइबर जिनके एग्जांपल है. जैसे नेचुरल फाइबर का है, आप मान लीजिए कॉटन. कॉटन तो पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास अच्छा पेन नहीं है. कॉटन, कॉटन नेचुरल फाइबर का एग्जांपल. कॉटन ले लो, बहुत सारे, 3 ले लो, कॉटन, जूट एंड वूल, ये 3 हो गए. आपको ऑप्शन में दिए गया है कॉटन, जूट, वूल एंड एक आपको दे दिया नायलन. क्या दे दिया आपको? नायलन. ठीक है, कॉटन, जूट, वूल एंड नायलन आपको दे दिया. अब आपको इसमें से बताना है ऑड वन आउट, जो ऑड है. ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑड वन आउट आपको बताना है. क्या होगा? नायलन. क्यों होगा? कॉटन नेचुरल फाइबर, जूट नेचुरल फाइबर, बट वूल ऑल्सो नेचुरल फाइबर, बट जो नायलन है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर. तो ऑड वन आउट क्या हो गया? सिंथेटिक फाइबर. जिनके एग्जांपल के भी आपको याद होने चाहिए. ओके. चलिए, ओके, जो केमिकल से ऑब्टेन होते फाइबर उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. सम एग्जांपल पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक. अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है हमारा कॉटन. ये कॉटन के पेड़ होते हैं. सी, दे आर कॉटन ट्री, कॉटन प्लांट. हैव यू एवर मेड, वन सेकेंड, हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी भी ऑयल लैम्प्स की विक्स बनाई है? व्हाट डू यू सी फॉर मेकिंग these wicks? This cotton wool is used for filling mattresses. कॉटन की वूल का हमारे मैट्रेस मतलब गद्दे में लगाई जाती है. पिल्लो, quilts. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edge. What do you observe? The small thin strand that you are made up of cotton fiber. आपको दिखेगा कि वो थिन है, कम है और वो कॉटन फाइबर से बना है. Where does it cotton wool come from? कॉटन और वूल कहाँ से आती है? It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at places having black soil. Important. लिख लो अभी सभी. क्या लिख लो जो बता रहा हूँ कि जो कॉटन का प्लांट होता है वो ब्लैक सॉइल में जमता है, ब्लैक सॉइल में लगता है. कॉटन का प्लांट ब्लैक सॉइल में लगता है और ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रेगुड सॉइल. अभी लिख लो क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ. ब्लैक सॉइल को बोला जाता है रेगुड सॉइल. रेगुड सॉइल. ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रेगुड सॉइल. याद रखना है. सॉरी. ये कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है कॉटन का प्लांट. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ब्लैक सॉइल का सेकंड नेम होता है आपका रेगुड सॉइल. जिसको नहीं पता याद रख ले, रेगुड सॉइल. ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं हम? रेगुड सॉइल.
चलिए पता चल गया। नोट इट डाउन जो भी मैं बता रहा हूँ। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ our country where cotton is grown? The fruit of the cotton plant, cotton balls are about the size of a lemon. जो ये कॉटन बॉल्स होते हैं ये एक लेमन के साइज के होते हैं। किसके? एक लेमन के साइज के। नींबू, इसको बोलते हैं ना नींबू, एक नींबू के साइज के होते हैं। क्या होते हैं नींबू के साइज के? कॉटन बॉल। ये आपका नींबू है, इसके साइज का होते हैं कॉटन बॉल, बस छोटे 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 छोटे। ये देखिए। ओके चलिए। आफ्टर मैचरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन। ये जो बॉल्स होते हैं ना इनके, ये एकदम फटते हैं, ये खुद बाहर आते हैं, ये फटते हैं एकदम। ओके ये जो बॉल्स है, ये यहाँ बॉल्स देख रहे हो, ये सारे फट के बाहर आते हैं। कैन बी सीन। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकलिंग? आपने कभी देखा है? सच बताओ मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कॉटन का पेड़ नहीं देखा आज तक। देखेंगे फ्यूचर में। ओके इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद स्नो। वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ ये सारा स्नो में, हमें तो फोटो में ही लग रहा है स्नो है ना, तो असलियत में तो लगता ही होगा। फ्रॉम दिस वर्ल्ड कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो कॉटन है ये किसी मशीन से नहीं, ये हाथ से पिक किए जाते हैं, क्योंकि इतने नाजुक होते हैं। अगर हम इनको मशीन से पिक करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीन बाय कंबाइनिंग। इनके फाइबर को निकाला जाता है, कंबाइन किया जाता है। मीन्स अब कॉटन बॉल कितना होता है? इतना। कितना होता है कॉटन बॉल? इतना इतना। देखो इतना सा होता है कॉटन बॉल, इतना इतना सा। अब कॉटन हम देखते हैं कितनी सारी क्वांटिटी में होता है, इतने में, है ना। तो जब इतने 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 करके सारे मिल जाते हैं तो ये बनाता है ये। तो जब सारे कॉटन बॉल को कंबाइन कर देते हैं, जब बनता है कॉटन का गुच्छा। जिनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग। मतलब उनको निकालना फिर उनको जोड़ना, तो कॉटन का पूरे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिनिंग। इम्पोर्टेंट, कॉटन के प्रोसेस को बोला जाता है जिनिंग। एंड ये ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रेगुर सॉइल। बार बार बता रहा हूँ, ब्लैक सॉइल का सेकंड नेम है रेगुर सॉइल। याद रख लो, कान में बांध लो। रेगुर सॉइल इज द सेकंड नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ओके दिस द मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर जिनिंग। और अब तो मशीन भी यूज हो गई है जिनिंग के लिए। ये देखिए ये सारे कॉटन को ये जो मशीन है ये ला रही है और यहाँ जॉइन कर रही है। ओके तो जब एक कॉटन बॉल को दूसरे कॉटन बॉल के में ऐसे जोड़ देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिनिंग। याद रखना। लेट्स टॉक अबाउट jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. जो jute plant होता है ये हमें दिख रही होगी jute plant की। इसकी जो लीफ होती है, स्टेम होती है, उससे जूट निकाला जाता है। जूट जो फाइबर होता है, ये जो इसकी स्टेम है ना, ये देखिए, ये देखिए जो स्टेम है ना इसकी, ये इससे निकाला जाता है। ठीक है। Okay, it is cultivated during rainy season in India. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो जूट फाइबर होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जूट फाइबर होता है वो कौन से सीजन में निकाला जाता है इंडिया में? तो आंसर इज रेनी। आंसर इज रेनी। मैं लिख नहीं पा रहा सच, पर अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम पेन खरीद लेंगे जल्दी। फिर मैं और भी इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ। तो ये याद रखना है, ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। ये याद रखना, मैं इतनी बार अंडरलाइन कर रहा हूँ तो मतलब इम्पोर्टेंट समझ ले करो। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ये सारे याद करने स्टेट, जितने स्टेट लिख रहे हैं ये सारे याद करने। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। And the jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जब इसके फ्लावर निकलते हैं ना जूट प्लांट के, जब ये हार्वेस्ट के लिए होती है तैयार, मतलब जब इसके स्टेम से हम जूट निकाल सकते हैं। ओके आर इमर्स्ड इन वाटर, फिर इनको वाटर में डाला जाता है फॉर अ फ्यू डेज। फिर ये स्ट्रीम नॉट द स्टेम्स
रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। फिर उसके जो फाइबर्स होते हैं वो हैंड से निकल जाते हैं आराम से। ओके, तो जूट का देख लिया प्रोसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. ओके, सबसे पहले जितने भी फाइबर होते हैं उनको यार्न में डाला जाता है। ओके, यार्न से बनाया जाता है, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इट इज डन, हाउ हम कैसे यार्न को फैब्रिक, हाँ ओके, हम कैसे यार्न को फैब्रिक में बनाते हैं। चलिए पढ़ते हैं, मजा आएगा। ये पढ़नी एक्सरसाइज दे रखी है। There are many ways by which fabric are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. फैब्रिक को yarn से करने के लिए बहुत सारे हैं, बट जो दो मेन है वो है weaving and knitting. Okay. In activity 2, you might have noticed that the fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called. अब इसको लिखिए, नोट करिए, मेरे को नहीं पता, पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। जब दो सेट यार्न के को मिलाकर बनाया जाता है फैब्रिक, उस प्रोसेस को कहते हैं हम वीविंग। ओके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं है या अब हम बात करते हैं क्रिएटिव। यहाँ कोई एक्टिविटी दे रखी है जिससे आप देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ एक्टिविटी दे रखी है, सब देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। ये कुछ एक्टिविटीज है। ओके, चलिए, देखा आपने, जो इम्पोर्टेंट नहीं थी मैंने बता दी। सॉरी क्रिएटिव। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर knit, कि स्वेटर कैसे हम स्वेटर को नॉट करते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, कनाइटिंग। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कनाइटिंग। नाइटिंग। ओके, A single yarn is used to make a piece of fabric. इसमें एक ही yarn यूज होता है, इसमें। From a torn pair of socks. दो socks का what happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also ये मशीन और इनसे बनाया जाता है। जैसे हम अपने स्वेटर पहनते हैं घर में, ये सब knitting से। अम्मा हमारे जूते बनाती हैं, स्वेटर बनाती हैं हाथ से, ये भी knitting का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। वीविंग आपने समझ लिया, जब दो यानों को मिला के बनाया जाए तो उस फैब्रिक को बोलते हैं, वो फैब्रिक वीविंग से आता है। और जब एक ही यान से बनाया जाता है तो वो किससे आता है, नाइटिंग से। चलिए अगर हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं, अगर हम पे टाइम बचा होगा तो। यस, इनको क्लासिफाई कीजिए। चलो ये वाले मैं करा देता हूँ, वैसे मैं ये वाली करा नहीं सकता। नायलॉन सिंथेटिक, वूल नेचुरल, कॉटन नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिएस्टर सिंथेटिक, जूट नेचुरल। सारे पढ़े। yarn is made from fiber. yarn is made from fiber नहीं, फाइबर से यार्न बनते हैं ना, वो सॉरी यार्न से फाइबर बनते हैं, तो फाइबर से थोड़ी यार्न बनता है। ओके, so it is false. Spinning is a process of making fibers. No. Jute is outer covering of coconut. No. The process of removing seed from cotton is called ginning. Yeah, correct. Weaving of yarn makes a piece of fabric. Correct.
नो आई थिंक यान वीविंग से नहीं, नाइटिंग से बनता है पीस ऑफ फैब्रिक। पीस ऑफ फैब्रिक नाइटिंग से बनता है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। थोड़ा डाउट हुआ है, या ये आपका फॉल्स होगा। ओके, फॉल्स होगा ये। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। नो, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। फॉल्स। Plant fiber obtained from. Plant fibers are obtained from stems and roots. Animal fiber from. And animal fibers are wool and silk. From which part of the plant cotton and jute are obtained? जूट कहाँ से? स्टेम से। and cotton का जो फ्लावर होता है उससे। name to item that made from cotton fiber, coconut fiber, ये आपको बताना है। explain the process making yarn from fiber. ये आपका ट्रू होगा। ओके, दिस इज ट्रू। And here one more. The process of making yarn from fiber is called spinning. Okay. yarn बनाने की प्रोसेस का फाइबर बनाने की। ओके, fabrics are made from yarn which is turn are made from fabrics. ओके, तो होप आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो कल पर कैसे रहा था वो कमेंट में बताइए। एंड और सैंपल पेपर लाऊंगा, और सबका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे जो एडमिन है मंच यदुवंशी, आप उनके टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, आपको जल्दी से जल्दी आंसर दिया जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय बाय।